Hello and welcome to Walk the Talk. I am Shekhar Gupta in the heart of Lutyens, Delhi. To my right is one Safdarjung, Indira Gandhi Memorial where she used to live. In my front is 7RCR and I am standing in the home of the senior most member of the Modi cabinet. But not just that, a real guru of Hindi heartland politics, but also a shishya of Atal Bihari Vajpayee ji. शेखर जी, Kalraj you Mishra have ji, spread आपका बस view about me. except your portfolio, I have said everything. I appreciate it, and so far as Atalji is concerned, Atalji is a great leader. He is not leader of only Kalraj Mishra, but he is the leader of not only the country, he is the leader of international world. When he was the Prime Minister, so many countries were expressing their views that Atalji is the symbol of the peace. So, due to Atalji's behavior, so many great persons were inspired. Do you remember, And so far as do you remember any stories about Atal ji? कभी डांट लगाई हो आपको? कभी yes, कभी yes, प्यार किया? बताएं. I remember. Tell us some. When he toured in Uttar Pradesh, that time I was present there also, and for the first time I was the organizing secretary of the Eastern UP, and Atalji's tour was there. I was very much pained with my stomach, अच्छा. and I didn't express my pain to before anybody. Atalji knew. That time Atalji rebuked me. Rebuke you. Yeah. And he told, why are you bearing this? You don't come with me. And you should take rest here. I told, you are here. How should I take rest? I remember it. You were as the fatherly treatment of Atal. you were his your closest aide in UP. You may say. What did Atal ji say to you when you resigned in 2002? Atalji, Advaniji and Janakrishnamurti, all of them didn't express good thing about me. Did they shout at you? they told me that it should have not been resigned because they were thinking about me in future for something else. And therefore... I they can told say that me, something else was Chief Minister of UP. I don't say. So, sir, do you think you missed that opportunity to be Chief Minister of UP? I may say. You may say. Yeah. And it was that 2002 mistake or something else? I can say that was the mistake. That was a mistake. And if you had not done it, maybe party Because would... so many leaders of our party Right. misquoted me. Right. And the idea was made among our leaders that I have done some indisciplined behavior. I think there was suspicion that you were attending meetings with Mayawati. It should not be there. Should not be because there. Mayawati, Mulayam Singh ji and other leaders of the Congress also very much nearer to me. And they also give benefit whenever I want So, to sir, I go can and- say that if you had not taken that decision in 2002, BJP would not have declined, in your view, I as think so. rapidly as it I did. think so. I think one is your situation and second is Kalyan Singh going in and out. It is upon the Kalyan Singh ji's own behavior. Right. And he should not have resigned from the party, and he should have not been spoken about Atalji like that. But sir, one thing happened. By going to Mulayam Singh, he did one thing for BJP. He weakened Mulayam Singh Yadav, at least at that time. Yes. He destroyed him in that election. Yes. It is proper whatsoever you are expressing your view Analysis. about that situation. आप माने या ना माने, मेरे ख्याल आप मानेंगे क्योंकि आप बड़े वरिष्ठ नेता हैं कि 73 सीटें जो भी आई पिछले साल, उसका मतलब ये नहीं कि आपको यूपी के राज्य के चुनावों में भी वही सीटें आ जाएंगी. यूपी के राज्य में कुछ और करना पड़ेगा. शेखर जी, मैं इतना कह सकता हूं कि जो 73 सीटें उत्तर प्रदेश के अंदर आई, इसका अर्थ तो इतना जरूर हो गया कि आम जनता को ये लगा कि कोई प्रभावी काम कर सकता है. वो नरेंद्र मोदी के लिए. नहीं, एक मिनट. कोई प्रभावी काम कर सकता है
तो ये नेतृत्व के रूप में जिसने गुजरात में अनेक प्रकार के कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन गुजरात का विकास किया, वही प्रभावी तौर पर देश को नेतृत्व भी दे सकता है। और साथ ही साथ जो उसकी पार्टी है, उस पार्टी भी उसी दिशा में विचार करती है, जो काम करती है। पार्टी और नेतृत्व दोनों का समुचित सामंजस्य और दोनों के प्रति विश्वसनीयता का भाव जनता ने व्यक्त किया है। और इसका अर्थ यह है कि जनता के मन के अंदर लगता है कि मोदी या बीजेपी का नेता और बीजेपी एनडीए यही आगे बढ़ सकता है। कौन नेता होगा यूपी में इस बार? हमारे यहाँ जो काम करने की पद्धति है सामूहिक नेतृत्व के आधार पर है। और जब सामूहिक नेतृत्व के आधार पर है तो सामूहिक नेतृत्व के आधार पर चुनाव लड़ा जाएगा। और फिर जो काम करने की हमारी प्रक्रिया है, हमारा नेतृत्व, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड उस दिशा में निर्णय लेगा कि कौन नेता होगा। लेकिन कलराज जी ये बताएं कि 1992 में जैसे हुआ वो ठीक हुआ या गलत हुआ? वो अवॉइडेबल था? उससे कड़वाहट आई? देखिए, उस समय की परिस्थिति भिन्न प्रकार की थी। उस समय इतनी जबरदस्त भीड़ थी। तो क्या अटल जी बहुत एक मिनट भीड़ थी और किसी भी प्रकार की ऐसी कोई योजना ही नहीं थी कि कोई इसको ध्वस्त कराया जाए। ईमानदारी की बात तो ये थी कि एक सामूहिक एकत्रीकरण के आधार पर सरकार के ऊपर दबाव डाला जाए कि यहाँ मंदिर का निर्माण हो। और लेकिन उस समय की सरकार ने कार सेवकों के ऊपर जो लाठीचार्ज किया, लोगों को रोका, जाने नहीं दिया, उसकी एक प्रतिक्रिया जरूर हुई। और उस प्रतिक्रिया का ये परिणाम हुआ जो मैं समझता हूँ कि आज का स्वरूप निर्माण किया है। लेकिन कोई योजना बनाकर किसी ने किया ऐसा आपका कहना है। लेकिन आप उस बात से खुश हुए, अच्छा हुआ, या अटल जी की तरह आप भी नाराज हुए? व्यक्तिगत रूप से उससे प्रसन्न नहीं हूँ। लेकिन आप ये बताएं कि कुछ बातें ऐसी हैं जिससे लोगों पे असर हुआ है, खास करके गांव के इलाके, जैसे कि ये लैंड एक्विजिशन बिल है, ये किसी और तरीके से लाया जा सकता था अध्यादेश की बजाय? देखिए, सही बात तो ये है कि भूमि अधिग्रहण कानून 1894 का बदलना है। ये बदलना चाहिए था बहुत पहले, नहीं हुआ। 2013 में ये कानून बना, उसमें सबसे परामर्श लिया गया, हमारे लोगों ने भी परामर्श दिया था। 2013 के कानून बन जाने के बाद बीजेपी का भी समर्थन था, हमारे वरिष्ठ नेताओं ने समर्थन दिया था और बड़े बढ़ चढ़ करके दिया था। उसके बाद जो उसके परिणाम स्वरूप कुछ कठिनाइयां आई और जिसके बारे में स्वयं मुख्यमंत्रियों ने भी, राजनेताओं ने भी जिक्र किया, तो स्वाभाविक है कि हमारी सरकार आ जाने के बाद उनकी सारी शिकायतों को ध्यान में रखते हुए संशोधन हम करें और ऐसा कानून बनाएं जिसके कारण ग्रामीण भी लाभान्वित हो सके, लोग भी लाभान्वित हो सके। यही सोचकर ये भूमि अधिग्रहण कानून बनाया गया। पद्धति के आधार पर काम आपको कभी ये लगता है कि पार्टी ये दिखा रही है कि उसे मेरी जरूरत नहीं है यूपी में? जो नेतृत्व होता है उसके ऊपर निर्भर करता है। नहीं, अभी आपको कभी ऐसे लगता है? हाँ, लगता है। और ये बदलना चाहिए। ये बदलने के लिए हमने सुझाव भी दिया है जी। और बदलना तो बहुत आवश्यक है। बगैर इसके बदले हुए जो हम सफलता की उम्मीद करते नहीं प्राप्त होगी। क्योंकि वो 73 इसमें नहीं, वो 73 उसका छोड़ दीजिए, क्योंकि राजनीतिक परिस्थितियां, चुनावी परिस्थितियां भिन्न होती हैं। लेकिन ये एक चीज ऐसी है कि अगर किसी भी कार्यकर्ता और किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति के मन के अंदर ये बात आ गई कि मेरी उपेक्षा हो रही है, तो आधी ताकत उसी वहीं खत्म हो जाती है। और जो लोगों को प्रेरित करना चाहता है नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी ताकत ही नहीं है। अरे जाने दो, जैसा भी हो रहा है। ये अगर भाव पैदा हो गया तो बड़ा खतरनाक है और इसको खत्म करना चाहिए। ये नेतृत्व के द्वारा ही खत्म हो सकता है। तो ये आपके, इसलिए मैं अमित जी को ये नेतृत्व के लिए भी अमित जी को सलाह है, उत्तर प्रदेश के लिए नेतृत्व को सलाह है और जहां भी ये घटनाएं घटित हो रही हैं सबके लिए है। अमित जी के बारे में कहना चाहूंगा, अमित शाह एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी है, बहुत डायनामिक है, प्रधानमंत्री जी के साथ सीधा सीधा संबंध और एक सामंजस्य पैदा करते हैं सरकार और संगठन, क्योंकि ऐसे समय में सरकार और संगठन का समन्वय नहीं होता है और उस समन्वय के अभाव में बड़ी परेशानी पैदा हो जाती है। अमित शाह जी एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं, सरकार और संगठन के अंतर्गत समुचित रूप से सामंजस्य स्थापित करते हुए चल रहे हैं। ये बात सही है कि कई जगह से चीजें आती है, कार्य की व्यस्तता के कारण जैसा कम्युनिकेशन होना चाहिए नहीं हो पाता है और बढ़े, ये मैं आग्रह करूंगा। लेकिन अमित शाह जी के व्यक्तित्व
और उनके कार्य को देखते हुए मुझे लगता है उनके स्वभाव में ये चीज है कि बहुत अधिक मिलने वाला हिसाब नहीं रहता है। इस स्वभाव की कमी जरूर है, लेकिन उनके नियत, उनका काम करने का लेकिन ये तरीका स्वभाव बड़ी उपयुक्त है। ये और स्वभाव- इसलिए अमित शाह जी क्रमशः उस स्वभाव में बदल करते जा रहे हैं। अच्छा। और आपस में मिलने जुलने की प्रक्रिया को तेज करते जा रहे हैं। और- और जैसे आपने सुना होगा कि कार्यालय पर सोमवार को बैठने का होता है, तो वो इस बात को प्रकट और करता है आपका- कि उनको ये पता है कि ये लोगों को जानकारी हो रही है, तो उसमें कमी हो, इस बात को ध्यान में रखकर उन्होंने काम तो करना शुरू आपका किया। गुरु मंत्र होगा कि इसको और हमारा मंत्र नहीं, वो भी अनुभवी हैं, हाँ, सब अनुभव कि करते इस हैं। बात को और बढ़ाएं। उसको अधिक से अधिक जितना भी हमारा संवाद लोगों से बढ़ेगा, जितना मिलने जुलने का क्रम चालू होगा, इनफॉर्मल मीटिंग्स होगी, उतना ही संगठन ताकतवर होगा, उतने ही आम जनता को हम प्रभावित कर सकेंगे। ये मैं अच्छी तरह से समझता हूँ। इसको आगे बढ़ाना चाहिए, ये हमारा जरूर तीसरा- आग्रह लोगों से। Kalraj ji, your English is so good that you and I should not have an excuse. So I'm switching back to English. Yeah. Now, if you were to give advice, put on your senior hat, not a cabinet member, but a senior hat. What advice will you have for the Prime Minister who's much younger than you? The Prime Minister is Prime Minister, and I am working under him. Therefore, I always respect him as the great and dynamic Prime Minister of the India, and I have full respect about him. Definitely, but as a senior, as an elder. No, as elder, it doesn't arise the question of elder when I am working under him and under his cabinet minister. Therefore, but when soever I feel that this session should be given to Prime Minister, I always take time with, What is it and try to advise him. What is it that he should learn from Mr. Vajpayee? Both personalities are quite different. Vajpayee is the great leader, broad-hearted man, and everyone is in his heart. And Modi ji is very dynamic personality. He always struggled against the calamities, against so many difficulties, against the injustice, and those mindset has been created in his mind, and therefore, and other thing is, before Modi ji, poor people are there. His vision towards the villages, poor people, Is very strong. and youth